very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last video, we discussed the very important chapter number 2, that is accounting for partnership firm. In this chapter, we discuss a lots of topic. So in this video, we will discuss a few of the important practical problem related to the manager's commission. Number 2, interest on partner's loan, and number 3, profit on loss appropriation account, as well as the partner's capital account. Okay, so let's start the today's topic. The first topic of this video is the manager's commission. Sometimes you know very well, the managers of the partnership firm have entitled to get the payment. That is, this is known as the commission. Manager is entitled to get the receive a certain kind of the certain percentage of the commission. So it will be known as the manager's commission, and the manager's commission is totally based on the net profit. Managers को जो commission दिया जाता है वो commission net profit पे based करता है. Net profit जितना ज्यादा होगा commission उतना ज्यादा होगा. Okay, so let's start. Basically, managers commission are provided on the profits. Managers commission are provided on profits, and it can be provided by of the following two way. दोनों में से किसी एक तरीके से हम मैनेजर्स को कमीशन पे करते हैं. So managers commission is totally based on the profit of the business, so it will be provided by any of the following two way. That is, number 1, if manager is entitled a commission on profit before charging such commission. Okay, so managers commission, managers को जो commission दिया जाता है on profit, basically उसमें दो cases होते हैं. First, if managers entitled a commission on profit, किस profit पे commission मिलता है? Before charging such commission, जो commission देने से पहले की profit पे अगर उस समय commission दिया जाता है. नंबर सेकंड सिचुएशन होती है if manager is entitled a commission on profit after charging such commission. यानी मैनेजर्स को हम जो कमीशन देते हैं बेसिकली वो दो तरह की प्रॉफिट पे हम कमीशन प्रोवाइड करते हैं. नंबर 1, या तो हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे देते हैं, यानी ऐसी प्रॉफिट जिसपे कमीशन चार्ज नहीं हुआ है. एंड नंबर 2, ऐसे प्रॉफिट पे हम कमीशन प्रोवाइड करते हैं जिसपे कमीशन चार्ज हो चुका है. तो बेसिकली इस सिचुएशन में कमीशन का जो फॉर्मूला है, कमीशन फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, इट विल बी अ सेपरेट. सो इन दिस सिचुएशन द फॉर्मूला विल बी अ नेट प्रॉफिट इनटू rate upon 100, and in this situation the formula will be a net profit into rate upon 100 plus rate. Okay, so मैं थोड़ा कंक्लूड करता हूं इस टॉपिक को. We are talking about the manager's commission on profit. Basically, the first case related to this topic is if manager is entitled a commission on profit before charging such commission. So in this situation the formula will be net profit into rate upon 100, and if manager is entitled a commission on profit after charging such commission, so in this situation the formula will be net profit into rate upon 100 plus rate. Let's we take the one example for creating a better understanding regarding the manager's commission on profit. Okay, suppose let's we take the one question related to this topic. The question is,
A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with a capital of 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. B is to be allowed an annual salary of rupees 2,500. During 2016, the profit of the year prior to calculation of interest on capital, but after charging B's salary amounted to 12,500. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of manager's commission. And prepare an accounting showing an allocation of profit and partners capital account. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोल रहा है और इसमें एक टॉपिक है दैट इज मैनेजर्स कमीशन. तो यू नो वेरी वेल इसमें जो प्रॉफिट दिया है इस क्वेश्चन में दैट इज 12,500. इट विल बी द आफ्टर चार्जिंग द बी सैलरी एंड यू नो वेरी वेल मैनेजर्स कमीशन will be shown in the profit and loss account instead of the profit and loss appropriation account. ये बात ध्यान रखनी है. Manager's commission is not a part of PL appropriation account. It is a part of the PL account. So जब भी हम managers commission को write down करेंगे, so first of all we prepare the PL profit and loss account. According to the question, the net profit, the profit given in the question, the profit will be this is the question number 11. Profit कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? According to the question, the profit will be 12,500 after B's salary. Okay, so इसे हम क्या लिखा है? Profit after B salary. B के सैलरी के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? That is 12,500. And you know very well, profit and loss account में हम पार्टनर्स के एक्सपेंसेस को शो नहीं करते हैं. It will be shown in the profit and loss appropriation account. Yes. Okay. So जो B की सैलरी है वो ऑटोमेटिक इसमें रिवर्स ऐड हो जाएगी. So our profit shown in the profit and loss account that is 15,000. और उसमें हमें क्या देना है? That is the managers commission. कितना परसेंट मैनेजर्स कमीशन हमें प्रोवाइड करना है? मैनेजर्स कमीशन हमें प्रोवाइड करना है that is 5% ऑफ द प्रॉफिट. इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं कि बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग. और जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो वी फॉलो ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग्स दैट इज अ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर चार्जिंग को हमें कंसीडर नहीं करना है. तो मैनेजर्स कमीशन विल बी 15,000 इनटू रेट अपॉन 100 दैट इज 5%. 5/105 नहीं होगा इस क्वेश्चन. दैट इज 750. एंड नाउ वी फाइंड आउट द प्रॉफिट ट्रांसफर टू profit and loss appropriation account. This is the total 15,000. इधर पे कितना टोटल आना चाहिए? 15,000. बट 15,000 में 750 हमने मैनेजर्स कमीशन प्रोवाइड कर दिया. तो मेरे पास कितना बचा? That is 14,250 and it will be transferred to the profit and loss appropriation account. And after the preparation of PL account, we will prepare the profit and loss appropriation account. अब इसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है? मैनेजर्स कमीशन को पीएल एप्रोप्रिएशन में ही शो करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. मैनेजर्स कमीशन शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट विल नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, सो नेट प्रॉफिट दैट इज द नेट प्रॉफिट शोन फ्रॉम द पीएल अकाउंट 14,250. और इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे? जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको शो करेंगे. According to the question, the first expenses related to the partner that is a B salary, partner salary. Partners की सैलरी कितनी है? The partner salary will be 2,500 जो मैंने यहाँ ऐड किया था. अब वो पार्टनर्स की सैलरी यहाँ शो करेंगे. You know very well, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस it will be shown in the PL appropriation account. It will not shown in the PL account. उसे PL account में नहीं शो करते, उसे कहाँ शो करते हैं? PL profit and loss appropriation account में शो करते हैं. Okay. As well as according to the question that is interest on capital भी हमें देना है. कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? We have to provide a interest on capital at the rate of 5%, at the rate of 6%. Sorry for that. How many partners are there? There are two partners A and B. A's capital is 50,000. B's capital is 30,000. So the interest on capital will be 3,000 and 1,800. So the total interest on capital provided to the partners that is A and B separately देखो तो 3,000 और 1,800 आएगा, बट टोटल में कितना आएगा? 4,800. So you can see that हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 14,250. उसमें से हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन कितना कर दिया?
2500 डी को सैलरी दे दिया एंड 4800 पार्टनर्स को क्या दे दिया, यस आईओसी दे दिया, एंड रिमेनिंग विल बी नोन एज द profit on profit from profit and loss appropriation account, that is 6950, and it will be distributed among A and B, between A and B in their profit sharing ratio, और से A और B distribute कर लेंगे और ये profit transfer हो जाएगी उनके partners capital account में, that is A and B. So you know very well A और B का profit कितना होगा, A और B की profit होगी that is कितना रेशियो है इनके बीच में, 3:2 का रेशियो है, 3/5 एंड 2/5, तो ए को मिलेगा 4170 और बी को मिलेगा 2780. तो 6950 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन ए एंड बी 3:2 के रेशियो में, एंड वी फाइंड दैट ए गेट्स 4170 एंड बी गेट्स 2780. ओके, सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपर्ली. इसमें हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना भी सीख लिया और मैनेजर्स कमीशन को भी डील कर लिया. सपोज इसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा होता कि मैनेजर्स कमीशन शुड बी प्रोवाइडेड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहीं पे फॉर्मूला चेंज हुआ था 5/105. एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कि मैनेजर्स कमीशन इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, सो प्लीज नोट ऑन इन योर कॉपी. So let's we take the one more important practical problem related to the preparation of PL appropriation account and partners capital account. अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम PL अकाउंट, PL appropriation अकाउंट भी बनाएंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे. अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई वी चूज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी इसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे with by the fluctuating capital method. So let's we take the question. The question number 10. XYZ are partners in a firm with respective capital of 50,000, 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, each partner is entitled to interest on capital 5% and a salary of 1,000 per annum. तीनों partners को हमें interest on capital भी देना है और salary भी देना है. The very important line is that on the of the net divisible profit, X is entitled to 40%, Y to 30%. एंड जेट टू 30% ऑफ द फर्स्ट 5000, यानी जितना डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका फर्स्ट 5000 यानी कि जो 5000 रुपए रहेगा वो 40%, 30% एंड 30% के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द एक्स वाई जेड. एंड रिमेनिंग प्रॉफिट ओवर द दिस अमाउंट प्रॉफिट, जैसे 10,000 रुपए प्रॉफिट आ गया तो 5,000 रुपए हम लोग 40, 30 एंड 30 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद बचा 5,000 रुपए will be shared in the ratio of equal, will be shared to equally. The profit and loss account for the year ended before charging IOC and partner salary rupees 25,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. तो इस क्वेश्चन से हम लोग दोनों अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. सो यू नो वेरी वेल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट अभी जस्ट आपको पता ही है, आपने देखा ही है. particulars amount. Firstly we write down the net profit, you know very well. सबसे पहले हम लोग write down करते हैं that is the net profit. According to the quotient the net profit will be 25,000. The net profit according to the quotient that is 25,000 और हमें provide क्या करना है, that is interest on capital. Firstly we provide the interest on capital to X, Y and Z. You know very well the capital of X will be a 50, Y का capital है 30 and Z की capital है 20,000. तीनों की capital given है क्वेश्चन में clearly. So X की capital है 50, Y की capital है 30 and Z की capital है 20,000. So the rate of interest on capital is 5%. तो 50,000 का 5% that is a 2,500. Okay. Y की capital कितनी है 30,000. So according to the 30,000 you know very well 30,000 का 5% that is a 1,500 and Z की capital है that is 20,000. 20,000 का 5% that is a 1,000. So the total interest on capital provided to the XYZ is 5,000. Thereafter according to the quotient is a salary हमें हर partner को देना है. Each partner is entitled to a salary of 1,000. So to salary
एक्स वाई जेड तीनों को देना है एक्स वाई जेड 1000 to x 1000 to y 1000 to z. So total salary will be a 3000. Okay, and the remaining profit will be distributed are as follows. पहले 5000 को 50 30 30 के परसेंटेज में 40 30 30 के परसेंटेज में और बाकी की प्रॉफिट को हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज इक्वली. तो पहले हम फाइंड आउट तो कर लें डिविजिबल प्रॉफिट कितनी आएगी. सो द प्रॉफिट इज 25,000. प्रॉफिट कितना है 25,000, उसमें से 8,000 क्या हो गया, डिडक्ट हो गया. तो जो प्रॉफिट्स हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा एक्स वाई जेड. पहले प्रॉफिट कितना आया, फर्स्टली वी फाइंड आउट दी टोटल प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो कितना आएगा 25 minus 8. 25 minus 8 is the remaining profit is 17,000. वेरी गुड. अब इस 17,000 जो डिविजिबल प्रॉफिट है दैट इज 17,000, इसमें से फर्स्ट 5,000 रुपीज को हमें एक्स वाई जेड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 40%, 30% एंड 30%. बहुत ही ध्यान से समझना. पहले 5,000 यानी 17,000 में से 50,000 5,000 को 40 30 30 के रेशियो में बांटना है. तो एक्स को कितना मिलेगा, यू नो वेरी वेल, एक्स को मिलेगा यस 2,000 1500 1500. तो एक्स को कितना मिला 200,000, वाई को मिला 1500, जेड को मिला 1500. उसके बाद कितना बच रहा है, बैलेंस कितना बचेगा, 17,000 में 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिमेनिंग वैल्यू इज 12,000. इसे हमें इक्वली बांटना है, इक्वली मतलब 1:1:1. सो एक्स को कितना मिलेगा 4,000, वाई को भी मिलेगा 4,000, जेड को भी मिलेगा 4,000. सो प्रॉफिट कितना मिला, एक्स को मिला 6,000, वाई को मिला 5,500 और जेड को भी मिला 5,500. सो द 17,000 को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, इस प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया. 6,000 एक्स को मिला, 5,500 वाई को और जेड को मिला 5,500. सो टोटल प्रॉफिट इज 17,000. उसको हमने डिवाइड किया, बनता है एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूं. एंड आफ्टर दैट इन दिस क्वेश्चन वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसको वर्किंग नोट की तरह अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो फटाक से, तुरंत इमीडिएटली इसको क्या करो, रिकॉर्ड करो, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए और मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजीली बना सकूं. ओके, सो दिस इज अ डिविजिबल प्रॉफिट. कैसे हम डिविजिबल प्रॉफिट को बांटते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन. देयर आफ्टर वी विल मूविंग टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, यू नो वेरी वेल. फर्स्टली वी ड्रॉ अप द 3 पार्टनर्स नेम. इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट के कुछ वीडियोस में डिस्कशन भी किया था. और ये किस मेथड से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज फ्लक्चुएटिंग. क्योंकि यू नो वेरी वेल जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस बेसिस पे बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग. एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्टली वी राइट डाउन दी ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस BD. व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज एक्स की कैपिटल है 50, वाई की कैपिटल है 30 एंड जेड की कैपिटल है 30. So firstly we write down the amount of the capital, that is 50,000, 30,000 and 20,000. ओके, हमने नोट डाउन कर लिया. उसके बाद क्या करेंगे हम, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीज पार्टनर्स को मिलती है उसे हम क्रेडिट में शो करते हैं, और जो चीज उससे विड्रॉ की ली जाती है, जो जैसे सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फॉर्म उसको देता है ना. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी राइट डाउन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया भी था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन द सैलरी 1,000 for X, 1,000 for Y, 1,000 for Z, as well as the profit on profit and loss appropriation account. So जो profit and loss appropriation से profit आया है 6,000 X के लिए, 5,500 Y के लिए और 5,500 for Z के लिए. अगर यहाँ इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग होता तो उसे हम यहाँ शो करते, बट इस क्वेश्चन में कोई ऐसा ड्राइंग नहीं है. सो मैं
आपको समझाने के लिए लिख दे। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो उसे हम यहाँ डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते, बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ ड्राइंग एंड देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो लिखने की भी जरूरत नहीं है। एंड एट लास्ट, बिकॉज इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स व्हाई आई टेक द सिंपल क्वेश्चन। सो उसको आप ऐड कर लो, सिंपली ऐड करो तो कितना आएगा 50, 52, 53, 53 प्लस 6 59,500। So X का भी टोटल कितना आना चाहिए 59,500. So this is the balance of X capital. So we write down this is the opening balance of capital at the beginning of the year, and this is the closing balance of the capital at the end of the year. Apart from this 30, 15, 6, 7, 8, 38,000, and the closing balance of Y's capital is also 38,000. And for Z, 20, 21, 22, 22 and 25, 27,500, और उसको भी हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ओके, सो यू कैन सी दैट हाउ वी विल प्रिपेयर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्योंकि इसमें सारी चीजें, ऑल द थिंग्स आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। चाहे वो एप्रोप्रिएशन आइटम हो, चाहे वो कैपिटल आइटम हो, चाहे वो नॉर्मल ड्राइंग हो, चाहे वो कैपिटल ड्राइंग हो, चाहे एप्रोप्रिएशन के आइटम हो, सब चीजें एक साथ रिकॉर्ड हो। So in this situation, you can see that how partnership firm prepared profit and loss appropriation account, and with the help of the profit and loss appropriation account, we prepared the partners capital account. So अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जस्ट बाद पार्टनर्स कैपिटल अगर एक ही क्वेश्चन में दिया है, तो आपके लिए सिंपल सा ट्रिक है, डेबिट में पार्टनर से रिलेटेड जो भी एप्रोप्रिएशन है वो पार्टनर के क्रेडिट में शो होंगे, जैसे आईओसी, सैलरी एंड प्रॉफिट। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में कोई आइटम्स होता लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो उसे हम कहाँ शो करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। या लॉस होता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे, प्रॉफिट आया तो इधर डेबिट में बैलेंस आता है, लॉस आता है तो इधर आता है। तो अगर लॉस में कोई आइटम्स आता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, सो इट विल बी राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपरली। सो एट लास्ट लेट्स वी डिस्कस a very small and but very important topic of chapter number 2, that is accounting for partnership firm. The topic is interest on partners loan to the firm. You know very well, फर्म का जो पार्टनर होते हैं वो फर्म को कैपिटल देते हैं, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दे इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस इन द फर्म, and it will be known as a capital. Apart from this, some of the partners are also provided the additional fund irrespective of the capital to the firm for the better financial position of the business, and it will be known as the partners loan. यानी कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो फर्म को कैपिटल इन्वेस्ट करने के अलावा फर्म को लोन भी प्रोवाइड करते हैं, एंड यू नो वेरी वेल, एंड दिस विल बी नोन एज द पार्टनर्स लोन. पार्टनर्स लोन इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म. यू नो वेरी वेल, फर्म ने लोन लिया तो फर्म के लिए पार्टनर्स लोन क्या हो गया, एक लायबिलिटी हो गया, और उससे उस पैसे को रीपे करना है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. इज दैट क्लियर? सो पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज पार्टनर्स लोन इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म. दैट्स व्हाई पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, इट इज विल बी टेकन एज अ चार्ज. इट इज नॉट टेकन एज द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. It is will be not shown in the profit and loss appropriation account. So please note down. First one is interest on partners loan will be taken as a charge against profit. Charge against profit का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देना कंपल्सरी होता है, चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे चाहे फर्म लॉस अर्न करे. So it is a charge against profit and it will be shown in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसे हम कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ लायबिलिटी फॉर द firm. And which kind of liability? It will be shown as taken as the external liability, not an internal liability. पार्टनर्स की कैपिटल है,
so it is an internal liability. पार्टनर्स की एसेट्स है, so it will be known as the सॉरी पार्टनर्स का कैपिटल है, so it is an internal liability. बट अगर पार्टनर्स का लोन है, so it will be taken as the external liability. That's why इन पार्टनर्स के लोन पे जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है उसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं, और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो ना करके इट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Okay, sir. And the very important thing is, in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, यानी partnership deed के absence में interest on partners loan, partners के लोन पे जो इंटरेस्ट दिया था, interest on partners loan will be provided at 6% per annum. यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यू नो वेरी वेल, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर अमंग द पार्टनर. सो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, तो सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रोवाइड किया जाता है. ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, तो इस पे भी हम कह देंगे कि नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता. इफ देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी कितना परसेंट, दैट इज 6% पर एनम. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में प्रॉपरली नोट कर लो. ओके, लेट्स सी डिस्कस द एंट्रीज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. अब हम इसको समराइज करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में. फर्स्ट, इट इज एन टेकन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी. पार्टनर्स लोन को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, जस्ट लाइक एक्सटर्नल लायबिलिटी. सो इट विल बी अ, so the interest on partners loan, please listen carefully, partners loan will be taken as a external liability. That's why interest on partners loan will be taken as a charge against profit, charge against profit, and it will be shown in the profit and loss account. इसे हम लोग कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं. नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म related to the interest on partners loan, that is in the absence of partnership deed. अगर पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट को देने के लिए, लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, rate of interest on partners loan and the rate of 6% per annum. Okay, so entries क्या क्या होंगी, please note down. Entries will be a related to the interest on partners loan will be a, the first entry, that is interest on partners loan account debit, interest on partners loan account debit to partners loan. Okay, so the first entry is related to the interest on partners loan. The first entry is interest on partners loan to partners loan, and second, you know very well, interest on partners loan shown in the profit and loss account. It will be shown in the profit and loss account. So the second entry will be profit and loss account debit to interest on partners loan account. So these are the two entries which are related to the interest on partners loan to the firm. Okay, so please note down in your copy properly. And at, so you know very well, in case of any partner has given loan to the firm, he is entitled to receive interest at an agreed rate. If the rate of interest is not decided earlier, he is entitled to receive interest at the rate of 6% per annum. Interest on loan is a charge against profit, hence such interest is to be given whether firms earn profit or loss. यही बात मैंने आपको समराइज करके यहाँ बताई है. Okay, and it is very important topic for us. So I hope today we cleared all the topics very easily. In the next video, we will talking about the very important
टॉपिक रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को भी क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देते हैं। नो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी टेकन एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, कोई इंटरनल लायबिलिटी नहीं है। इसे आप पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बेसिकली जो पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है, सैलरी होती है, कमीशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि हम अपने पार्टनर को देते हैं एज अ इंटरनल लायबिलिटी। बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी टेकन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत ही ध्यान से इस चीजों को समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। At last, I want to say that interest on partners loan is a liability for the firm, is an external liability. That's why it will be taken as a charge against profit, which means it will be paid either there is a profit or loss. It will be shown in the profit and loss account, and in the absence of any information, the rate of interest on loan will be taken as a 6% per annum. Okay, so thank you, take care, and I request to all the students, please solve the practical problem, additional practical problem given in your book. Bye bye.